تحریر اسدار چودھری۔ ناظرین، آپ نے اکثر و بیشتر ٹی شرٹس، بل بورڈز اور دیواروں پر ایک تصویر کو دیکھا ہوگا۔ اس تصویر میں نظر آنے والے کردار کا نام چیگوویرا ہے۔ چیگوویرا کو مزاحمت کی علامت کہا جاتا ہے۔ چیگوویرا 14 جون 1928 کو لاطینی امریکا کے ملک ارجنٹائن کے ایک معمولی قصبے روساریو کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ ان کے والد ایک باغیانہ فطرت اور سماجی تقریبات کرنے کے شوقین تھے، جبکہ ان کی ماں ایک انقلابی کارکن تھیں جن کا اپنے بیٹے چیگوویرا کی سیاسی و نظریاتی تربیت میں بنیادی کردار تھا۔ چیگوویرا بچپن سے ہی شدید دمے کے مریض ہونے کے باوجود ایک بہترین ایتھلیٹ تھا۔ اس نے تیراکی، فٹ بال، گولف، شوٹنگ اور سائیکلنگ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ پیش کر رکھا تھا۔ بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے خاندان میں پرورش پانے والے چیگوویرا کو لڑکپن میں ہی سیاسی نقطہ نظر کی وسیع میدان سے متعارف کروا دیا گیا تھا، جس سے ان کے دل میں غریبوں سے لگاؤ پیدا ہو گیا۔ اپنی نوجوانی میں وہ کتابوں کا بہت زیادہ شوقین تھا اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اپنے ہی گھر میں 3000 سے زائد کتابوں پر مشتمل علم کا وسیع ذخیرہ مل گیا، جس سے اس نے اپنے علم میں بہترین اضافہ کیا۔ چیگوویرا کا اصل نام ارنسٹو گوویرا ڈی لا سرنا تھا۔ چیگوویرا بنیادی طور پر میڈیکل کا طالب علم تھا۔ انہوں نے بیونس آئرز یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس عرصے میں انہیں جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ اپنے تعلیمی کیریئر کے دوران ہی اس کے اندر سیاحت کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے 1950 سے 1953 تک جنوبی امریکہ کو 3 بار اپنی حیران کن اور سبق آموز سیاحت کا مرکز بنایا۔ اپنا پہلا سیاحتی سفر اس نے 1950 میں سائیکل پر برے اعظم کے جنوب سے شمال کی جانب کیا اور تنہا 4500 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ پھر اس نے 1951 میں اپنی سائیکل پر ایک موٹر لگا کر اسے موٹر سائیکل میں تبدیل کر کے دوسرا سفر کیا، جو تقریباً 8000 کلومیٹر تھا۔ تیسرا سفر اس نے 1953 میں کیا اور اس طرح چیگوویرا نے اپنی سیاحت کے اس سفر میں مجموعی طور پر متعدد ممالک بالخصوص یوراگوئے، چلی، پیراگوئے، بولیویا، برازیل، پیرو، ایکواڈور، کولمبیا، وینزویلا، نکاراگوا، گوئٹے-مالا، میکسیکو اور کیوبا کی مسافت کرنے اور وہاں کی عوام کے رہنے سہنے، سماجی رشتوں، رسم و رواج، طبقاتی تفریق اور نو آبادیاتی جبر و استحصال میں عوام کی بے حسی کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اپنے آخری سفر میں چیگوویرا نے کئی ہفتے پیرو میں گزارے اور وہ لوگوں کی تکلیف دہ زندگی اور سامراجی جبر و استبداد کے مختلف شکلوں کو دیکھ کر تھکنا ہی بھول چکا تھا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پھیلی غربت اور ظلم و جبر کا مشاہدہ کیا اور مارکسزم میں دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح انقلاب ہے۔ وہ باقاعدگی سے اپنے سفر کی ڈائری لکھتا رہا اور اس نے اپنے سفر نامے اور مشاہدات کو رقم کرنا اپنا محبوب مشغلہ بنا لیا۔ اس سفر کے دوران چیگوویرا کے مشاہدے میں جہاں بے پناہ اضافہ ہوا، وہیں جب وہ دور دراز دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے گزرا تو وہاں کے رہنے والے باشندوں کی حالت زار، غربت، بھوک، ننگ، بیکاری، بے روزگاری اور بیماریوں نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ چیگوویرا بنیادی طور پر غریبوں کے لیے بہت حساس دل رکھتا تھا اور اس سیاسی مشاہدے سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تمام جنوبی امریکہ اس وقت سامراجی غلامی اور اس کے مقامی کارندوں کے زیر تسلط ہے۔ اس نے سماجی غلامی کے خلاف جنوبی امریکہ کے تمام ممالک میں آزادی کی تحریک منظم کی۔ اس نے سامراجی غلامی کے خلاف جنوبی امریکہ کے تمام ممالک میں آزادی کی تحریک منظم کرنے کا تہیہ کر لیا۔ پھر اس نے یونیورسٹی آف بیونس آئرس سے اپنی میڈیکل کی ڈگری مکمل کی اور پھر اپنے ملک کو ایسا خیرآباد کہا کہ اس کی لاش بھی واپس نہ آئی۔ بیشتر نوجوانوں کی طرح چیگوویرا کو بھی دنیا دیکھنے کا ایسا جنون تھا کہ اسے کہیں رکنا یا ٹھہرنا نصیب ہی نہیں ہوتا تھا۔ پڑاؤ اس کے مقدر میں ہی نہیں تھا، جیسا کہ اس نے ایک مرتبہ خود کہا تھا کہ مجھے اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں ایک ناقابل یقین مقدر کی گرفت میں ہوں اور مسلسل مسافت میرا نصیب بن چکی ہے۔ اس کا راستہ کون سا تھا، اس کی سمت کون سی ہوگی، اس کا ادراک اس کو خود بھی نہیں تھا۔ اس نے سفر اختیار کیا تو پلٹنا بھول گیا اور برسوں اپنے آبائی ملک ارجنٹائن واپس نہ جا سکا۔ ایک مرتبہ چیگوویرا نے لکھا کہ جب میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس کے ذہن کے نہاں خانوں میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو آج ایک انقلابی کے طور پر اس میں ہے۔ ہر ایک کی طرح اس کا بھی ایک ہی مقصد
मकसद एक ही जुनून था, कामयाबी। वो ख्वाब देखा करता था कि वो एक मशहूर मुहक्किक बनेगा। वो सोचता रहता था कि वो अनथक मेहनत करके कुछ मुख्तलिफ करके दिखाएगा, कुछ ऐसा कि जो नोहे इंसानी की अजीम खिदमत करार पाए। लेकिन उस वक्त उसका ये आदर्श महज एक जाती कामयाबी का आदर्श ही था। हर एक की तरह वो भी अपने माहौल की ही पैदावार और उसका इजहार था। चे गुवेरा बैनुल अक़वामी ज़हन का मालिक, ऐसा इंसान जो दुनिया भर की महकूम अक़वाम को साम्राज्य नो आबादियाती शिकंजे से आजाद करवाना चाहता था। यही वजह थी कि जब वो ग्वाटेमाला में क़याम के दौरान माली मुश्किलात में घिर गया तो उसने बतौर डॉक्टर नौकरी करने से इसलिए इनकार कर दिया था कि वो मुकामी कवानीन के मुताबिक मुकामी कम्युनिस्ट पार्टी का बाकायदा मेंबर बन जाए और हमेशा के लिए वहीं रह जाए। चे गुवेरा अपनी आंखों से नो आबादियाती साए में पनपने वाली इस्लाह पसंदी की भयानक और मोहलिक कमजोरी को देख चुका था और उसका ये यकीन पुख्ता हो चुका था कि इस जमाने के हालात और साम्राज्य बर्बरियत में सोशलिज्म को मुसल्लह जिद्दोजहद के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। वो सितंबर 1954 में मैक्सिको पहुंचा, जहां उसके क्यूबा के उन तारिकीनुल वतन से राबते हुए जिनसे वो पहले ग्वाटेमाला में मिल चुका था। जून 1955 में वो पहले राउल कास्त्रो से मिला। फिर उसकी मुलाकात फेडरल कास्ट्रो से हुई, जिसे क्यूबा में कैद से रिहाई मिल चुकी थी क्योंकि उसे मोनकाडा बैरकों पर नाकाम हमलों के बाद कैद कर लिया गया था। चे गुवेरा ने फौरी तौर पर क्यूबा की 26 जुलाई मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, जो सदर बैथिशिया की आमरीत का तख्ता उलटने और साम्राज्यी इनकलाब बर्पा करने की मंसूबाबंदी कर रही थी। चे गुवेरा, जो अर्जेंटाइन का शहरी था, उसे इनकलाबी खिदमात के सिले में इनकलाब के बाद क्यूबा की शोहरत दे दी गई। पहले उसे इनकलाबी अदालत का सरबराह बनाया गया, फिर नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा का सदर बना दिया गया। उस जमाने के क्यूबा के करेंसी नोटों पर ची के दस्तखत मौजूद हैं। बादजा 1961 में ची को वजारत सनत का कलमदान भी सौंप दिया गया। इन जिम्मेदारियों के दौरान उन्होंने बुनियादी तब्दीलियों की वकालत शुरू कर दी, जिसकी बदौलत उसे क्यूबा में शुमाली अमरीकी जागीरदारों की जायदादों को कोमियाने के अमल में भी गुवेरा की राय को अहमियत दी जाती थी। मुल्क के अंदर उन्होंने ऐसे मंसूबे बनाए जिनके जरिए जमीनों की दोबारा से तकसीम की जाती और उन्होंने सनतों के लिए मंसूबाबंदी की। चे गुवेरा ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, जिसके बारे में ज्यादा तफसीलात तो नहीं हैं, क्योंकि यहाँ साम्राज्यी इत्तेहाद डिक्टेटर अयूब का दौर था। मगर ये जरूर वाज़ेह है कि चे गुवेरा के इस दौरे के इग़राज़ व मक़ासिद क्या थे। ये फरवरी 1959 की बात है, जब क्यूबा में फेडरल कास्त्रो की क़यादत में इनकलाब बर्पा हो चुका था। अमेरिका ने क्यूबा की इनकलाबी हुकूमत को तस्लीम तो कर लिया था, मगर इसके बावजूद कास्त्रो की सरबराही में क्यूबा की इनकलाबी हुकूमत आलमी तन्हाई का शिकार थी। ऐसे में फैसला हुआ कि फेडरल कास्त्रो के दस्ते रास्त और साम्राज्य के खिलाफ मुज़ाहमत का इस्तियारा समझे जाने वाले रहनुमा चे गुवेरा एक वफ़द के साथ इस इनकलाबी हुकूमत का तारुफ और पैगाम अक़वाम आलम तक पहुंचाने के लिए तीसरी दुनिया के ममालिक का दौरा करें। चे गुवेरा का ये दौरा 3 माह तवील था और उन्होंने इन 3 माह में 17 ममालिक का दौरा किया, जिनमें बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया, यूगोस्लाविया, मिस्र, मराकश, शाम, यूनान और पाकिस्तान शामिल थे। पाकिस्तान और इंडिया समेत दीगर ममालिक के दौरे के बाद 8 सितंबर 1959 को चे गुवेरा क्यूबा के दारुल हुकूमत हुआना वापस पहुंच गया। फेडरल कास्त्रो ने चे गुवेरा की खिदमत से मुतासिर होकर उसे कई और जिम्मेदारियां सौंप दी, मगर चे गुवेरा एक अमली इनकलाबी था और दफ्तरी माहौल में उनका दम घुटता था। चुनाचे बहुत जल्द वो इन जिम्मेदारियों से सबकदोश होकर वापस बरे आजम के दीगर ममालिक के जंगलों में चला गया, जहां उसने अपनी इनकलाबी जिद्दोजहद जारी रखी। बादजा उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक के दीगर हिस्सों में इनकलाब फैलाना चाहता है और फिर 1965 में फेडरल कास्त्रो ने ऐलान किया कि चे गुवेरा ने क्यूबा छोड़ दिया है। क्यूबा छोड़ते ही फेडरल कास्त्रो के नाम अपने खत में चे गुवेरा ने लिखा था कि मुझे लगता है कि मैंने अपने फर्ज का वो हिस्सा अदा कर दिया है जिसने मुझे क्यूबा की सरजमीन और इनकलाब से मुंसलिक कर रखा था। सो मैं आपसे, क्यूबा के इनकलाबी साथियों से और क्यूबा के आवाम से जो अब मेरे अपने हो चुके हैं रुखसत होता हूँ। दुनिया के दूसरे ममालिक मेरी हकीर कोशिशों और मेरी जिद्दोजहद को पुकार रहे हैं। उनका कहना था कि मौत आने तक जारी रहने वाली जिद्दोजहद की कोई हद नहीं है। दुनिया के किसी भी गोशे में जो कुछ भी हो रहा है, हम इससे लाताल्लुक नहीं रह सकते।
साम्राज्य के खिलाफ किसी एक मुल्क की फतह हमारी फतह और किसी एक मुल्क की शिकस्त हमारी शिकस्त है। चिगोवेरा ने अपने बच्चों के नाम भी खत लिखा, जिसमें उसने लिखा कि तुम्हारा बाप एक ऐसा आदमी है जिसने जो सोचा उस पर अमल किया। यकीन रखो वो अपने नजरियात से मुकम्मल तौर पर वफादार रहा और रहेगा। अगर कोई चीज अहम है तो वो है इनकलाब, उसके मुकाबले में हमारी जात और हमारा वजूद कोई अहमियत नहीं रखता। चिगोवेरा ने कई माह बरआज़म अफ्रीका, खास तौर पर कांगो में गुजारे। उसने गोरिल्ला जंग के लिए बागी फौज को तरबियत देने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें रायगा गईं और 1966 में वो खुफिया तौर पर वापस क्यूबा लौट आया। क्यूबा से उसने बोलीविया जाने की ठान ली ताकि वो रेनी बार्नथूस और तोनोकी हुकूमत के खिलाफ बागी फौजों की क़यादत कर सके। सितंबर के आखिर से ही गोरिल्लों के कदमों के निशानात का सुराग लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। बोलीविया की स्पेशल फोर्सेस को एक मुखबर की इतला पर चिगोवेरा के जाए मौजूदगी की खबर मिली तो अमरीकी CIA के ज़ेरे निगरानी बोलीवियाई फौजी दस्ते ने 8 अक्टूबर को इस इलाके का मुहासरा कर लिया और फिर एक मामूली झड़प के बाद चिगोवेरा को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। चिगोवेरा के पकड़े जाने की खबर मिलते ही सदर बर्नथूस ने उसको कत्ल कर देने का हुक्म जारी करने में एक लम्हे की भी ताखीर ना की। उसने अदलो इंसाफ के तकाज़ों को बुरुए कार लाने की तहजीब का मुजाहरा करने की जरूरत ही महसूस ना की और उनका हुक्म अमेरिका की मुकम्मल आशीर्वाद से ही जारी किया गया था। वो सब लोग किसी तौर पर भी चिगोवेरा पर मुकदमा चलाकर उसका बयान सुनने का रिस्क लेने को तैयार नहीं थे कि जिसमें वो अपना दिफा करता, अपनी सरकशी को बरहक और जायज करार देता और इस नाइंसाफी और नाबराबरी को नंगा करता जिसने उसे सरकश बनने पर माइल कर दिया था। इस किस्म की आवाज सुनने के बजाय उसे हमेशा हमेशा के लिए शहीद कर देने का फैसला कर लिया गया। चिगोवेरा को गिरफ्तारी के बाद करीबी गांव के एक सुनसान स्कूल की इमारत में ले जाया गया और वहां रात भर रखा गया। अगले दिन दोपहर के बाद चिगोवेरा को स्कूल की इमारत से बाहर लाया गया। ये 9 अक्टूबर 1967 का दिन था जब चिगोवेरा को 1:10 पर बोलीविया फौज के एक सार्जेंट मारियो ट्रान ने गोली का निशाना बनाया। उसकी मौत को यकीनी बनाने और उसके मर जाने का यकीन करने के लिए उसकी टांगों में बेशुमार गोलियां मारी गईं ताकि वो जख्मों की ताब ना लाकर मर जाए। चिगोवेरा की जिद्दोजहद और उसकी मौत दोनों का इस कदर शोहरा हुआ कि उसकी नजीर कम ही मिलती है। 1968 में तलबा के आलमी तहरीक के दौरान चिगोवेरा की 8 बरस पुरानी एक तस्वीर लाखों टी-शर्ट्स और पोस्टरों पर छप गई। बाद में यही तस्वीर मुख्तलिफ तंजीमों के परचमों, इनकिलाबी और अवामी मुहिम्मात में इस्तेमाल हुई और ये लातीनी अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक से लेकर दुनिया भर में टी-शर्ट्स और कॉफी के मग पर आज भी नजर आती हैं। चिगोवेरा की बाकियात को क्यूबा में सांता क्लारा में एक मकबरा तामीर करके पूरे कौमी एजाज के साथ दफन किया गया। ये वही जगह है जहां चिगोवेरा की क़यादत में क्यूबा के इनकलाब की आखिरी फैसला कुन लड़ाई हुई थी। चिगोवेरा एक काबिले एहतराम तारीखी शख्सियत के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगा, जिसकी सवाना हयात याददाश्तों, मज़ामीन, दस्तावेजी फिल्मों, गानों और फिल्मों की एक बड़ी तादाद में इज्तिमाई तख़य्युल में महफूज है। उसकी शहादत अपने वक्त व हालात में कार फरमा इनकलाबी जिद्दोजहद की बदौलत बाएं बाजू की मुख्तलिफ तहरीकों, बिलखुसूस कौमी आज़ादी की तहरीकों में एक नुमाया आइकन के तौर पर मशले राह रहेगी। उनकी मेरास पर इख्तिलाफ के बावजूद टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के 100 सबसे ज्यादा बाअसर लोगों में से एक करार दिया था, जबकि उनकी एक अल्बर्टो कोडा की तस्वीर जिसका उन्वान गोरिलेरो हेरोको था, जिसे 5 मार्च 1960 को हुआना क्यूबा में लाखों बड़ी धमाके के मुतासरीन के लिए एक यादगारी सर्विस मार्च में ली गई थी। मैरीलैंड इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ आर्ट ने इस तस्वीर को दुनिया की सबसे ज्यादा मशहूर तस्वीर का एजाज दिया। चिगोवेरा मुतादिद फिल्मों का मौजू भी रहा है, जिनमें दी मोटरसाइकिल डायरीज भी शामिल है। 9 अक्टूबर सन 1967 को बोलीविया के गांव लाहिगोरा में चिगोवेरा को खुफिया तौर पर सुपुर्दे खाक किया गया। सन 1997 में उनकी बाकियात का पता चला, जिन्हें निकालकर क्यूबा को लौटा दिया गया।